can't hear voice. Please carry on, sir. सुजीत सर. Okay sir. Thank you sir. मैं start करता हूँ, ठीक है ना? हाँ जी. I think Sunny is in mute mode. Okay, not an issue. No issue. Thank you and welcome you all. And first of all, I would like to thank Dhawan ji. First of all, I would like Dhawan ji for inviting me for sharing the company about company's information, some company product portfolio. Thank you all. First, let me take a quick tour for this corporate presentation. Now I request you all, please put your microphones on mute mode so that there will not be disturbance. Yeah. Okay. Yeah, thank you. I need all of your cooperation. So our company is basically belongs to German, and just let me put it the PPT mode. Yes. So basically our company is present in more than 47 countries all across worldwide, and so if I will talking about company profile, our company is basically established in 1961, and our headquarter is in Bottrop, Germany. And worldwide we have more than 2,500 employees altogether, and basically headquarter is in Bottrop, Germany, and we have more than 47 countries. We have more than 20 development and production facilities we have. And in India, we are in more than 20 countries we are there. And we are over 30 years in India, and we have our two manufacturing units right now. One is in Goa and another in Ankleshwar. And another manufacturing unit we are yet under development, that is in Halol, Gujarat. Okay. And we have a wide network of technical team and applicators. Company And now if I'm talking about the solutions, what basically we are providing solutions for concrete industries. Then for concrete industries, we are into these admixtures and repairing and rehabilitation. We will talk in detail. Now, if we are talking about concrete industries, in concrete industries, we are providing admixtures, polycarboxylate technology, and releasing agent, curing agents, and concrete cosmetics. We have then technological support for for the concrete. And for the infrastructure industries, we are providing for the strengthening of the concrete and high quality engineering, pavements, concrete repair, injections, joints. And for buildings, we are providing good quality construction solutions for like refurbishment and DPC solutions, breeds, injection technology. And in injection technology, we are very pioneer in India, and we have got all varieties of solution for injection technology. And basically our customer focus is to provide satisfaction for know-how transfer and individual practical solutions. And we are providing solution oriented things, and we are providing almost all more importance for the research and development section. And we are providing 10% of workforce for the research and development unit, and for introducing new products into the Indian market. And so this is all about the company profile.
But here today we are only discussing on the injection basically, and basically we will talk regarding the how we will do the repairing by help of injection methodology and what kind of solution we can provide. Okay, so before starting the presentation, I request to all of the participants that during my presentation, if you have any questions, if you would like to give, then please stop me and please unmute yourself and ask me the questions. First I will answer your question, then I will proceed further. So I will be very happy if we will make it a very interactive session, right? So here I'm starting my PPT, and can you all see my screen, sir? Yeah, we are seeing. We are able to see. Thank you. Thank you. Yes, Sujit. Yeah, Everything yeah. okay? Just a minute. Actually, yeah, I'm okay. But yeah, now you can see the full screen. Yeah. Yes, thank you, thank you. Actually, बीच बीच में मेरा ये सिस्टम पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है. I don't know. ठीक है. अच्छा, आप एक बार चेक कर लो. In the meantime, we have Sunny Sulekar with us. You know, Sunny Sulekar, Sunny Sulekar was the godfather of the trade, and they just had brought this MC friend to India. He was just the director of this MC just before. Yes, So I would yes. like Sunny just to say hello to everybody, to the attendant of the meeting, if he is Hello, comfortable. good evening. Hello, good evening. Hi, Sunny. Good evening, everybody. Yeah, good evening. Yeah, sorry, I was not set for this, so just minute lighting is not optimal. But anyways, I wish today's success. So all the best, and I think we can get a few good ideas like how to go about things today. Thank you. Yes, Sunny, good evening. Good evening, Sujit. All the best for your lecture. Thank you, Right. thank you, thank you, thank you. Thank you. Thanks, Sunny. Thank you. Yeah, Okay. Are you ready now? yeah, yeah. Okay. Yeah, Please carry on. So please carry on. So let's start. As I told you before, during my presentation, I request you all, you can stop me at any moment, and let's have please ask me anytime at a question so that we can go ahead. Okay. So as we know, the basic terminology for the repair, that is this kind of 5 steps repairing approach, everybody can say, okay, like for example, surface preparation, then cleaning of the reinforcement, then application of the bonding agent, then application of this corrosion protection, all these things. Then you can go for the repair motor as per the EN 1504 classifications. So these are the basic working methodology. I am not going in detail inside, because everybody, we know that we are more focusing on the injection part. So just briefly I'm just discussing all these things, that as we know that जो हमारा 1504 जो specification होता है basically for repairing of any kind of structure, it is categorized into 4 categories, like R1, R2, R3 and R4. Okay. So R1, R2, basically it is considered as the statically or non-structural repair. Then
R3 and R4 is basically considered as the structural repair. Okay. So structural repair में जब आता है R3 R4 grade, it means it should be more than 45 MPa, and for R1 R2 it should be more than 15 MPa. Okay. तो जब प्रिपेयर की अप्रोच आता है तो देयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, व्हिच इज वन ऑफ द वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट फ्रॉम MC Biochemist basket. That is this special DM. This is a kind of integral waterproofing compound which is very much acceptable by the market, and this is a very innovative product. Now आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं कि इसमें इनोवेशन क्या है, ये इसमें क्या है, बिकॉज एवरी कंपनी आज के तारीख में इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड डील करते हैं. तो हमारा ये इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड में इनोवेशन क्या है. आज वी नो कि जितने भी सारे इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड होता है, एवरी इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड इज वर्किंग बाय पोर ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी. So what is pore blocking technology? That is minimum 8% to 10% of water cement ratio can be reduced, and nowadays maximum up to 15% water cement ratio can be reduced by adding such kind of integral waterproofing compound for this kind of application. तो यहाँ पे भी वही होता है जो कि conforming to IS 2645, ठीक है ना. लेकिन उसके साथ ये और दो एडिशनल प्रॉपर्टीज बियर करता है, विच इज कॉल्ड द डायनामिक सिंक्रोनाइज्ड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. इसमें क्या होता है, सम क्रिस्टल्स फॉर्म, और ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में ये आपका स्ट्रक्चर को और भी डेंस बना देता है, सो दैट कि आपका कंक्रीट में पोरोसिटी मिनिमाइज हो जाता है. सो दैट बाय एडिंग दिस थिंग्स, पहला तो आपने वाटर सीमेंट रेशियो के साथ उसको पोरोसिटी को मिनिमाइज किया. इन सेकेंड स्टेप आपने बाय एडिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, बाय जिसको हम बोलते हैं डायनामिक सिंक्रोनाइज्ड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, आपने पोरोसिटी को इंक्रीज किया, मिनिमाइज किया. देन उसके बाद एक थर्ड प्रॉपर्टी इसमें एडिशनली आता है, विच इज कॉल्ड द हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज. Because of these hydrophobic properties, all the water molecules, they repel from the surface so that it will not allowed to enter into the pores. Okay, so this is a very innovative in nature. So as I told you कि जब कोई सीमेंट पार्टिकल, you can imagine this is a cement particle, and इसमें ये इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड जब मिक्स होता है and when it forms crystals, then ये इस तरह से क्रिस्टल बनता है और ये पूरा डेंस होता है. और डेंस होने के बाद आपका ये पूरा जो पोर है, कैपिलरी पोर्स, ये कैपिलरी पोर्स को ब्लॉक कर देता है. सो यू कैन से इट इज ए काइंड ऑफ पोर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म. Okay. Now, how we will come to know that really the porosity has been reduced? Because that porosity can be tested by help of permeability testings, and can be tested by help of compressive strength testing. And normally concrete का porosity इतना percentage रहता है जिसमें 12 to 13% रहता है. Whereas high performance concrete, जिसको हम high strength concrete बोलते हैं, उसको हम normally इसका porosity up to 10 MPa रहता है. But if we can add any good quality concrete by help of this integral waterproofing compound with the dynamic synchronized crystallization process, then its porosity can be reduced up to 4%. So that this kind of concrete can be more waterproof as comparison to any other concrete, right? So this is a very hypothetical example we can provide you, that after adding such kind of pore blocking integral waterproofing compound having 3-step pore blocking technology, what are the additional benefits we are getting? Now you can imagine ये एक कंट्रोल मिक्स का है जिसमें हमने 350 kg इस्तेमाल किए हैं. ये कंट्रोल मिक्स जिसमें हमने कोई भी इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड ऐड नहीं किए हैं, बट ये जो एरिया है इसमें हमने इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड ऐड कर रहे हैं. Okay. Can I request you all to mute the volume, please? Mute their microphone, please.
Hello, so that everybody can listen properly. Yeah, thank you, thank you. No, I think someone's microphone is on mute. Yes, please mute your microphone. Whenever you will ask questions, then please unmute yourself, then ask me. Okay. So after adding this integral waterproofing compound, now what are the changes we are getting additionally that we will see. Now after adding, when control mix where the water absorption is 1.3, where after adding this integral waterproofing compound, we are getting water absorption is 0.9 in 7 days. And in 28 days where control mix provides water absorption 1.3%. So okay. So now the compressive strength, if we can say, it is 66 in 7 days, where by adding MC special DM, we can get it 67.5, and in 28 days it is 75 and it gives 76. And the water penetration in 1 kg force water, it is 10.1, where it is 4. In 3 kg force pressure, where control mix provides 14, it gives 9.1. And water penetration in 5 kg force, where control mix gives 19.4, they in that conditions MC special DM provides 11.8. Okay, so you can see the changes of all these things. So this is a very innovative thing which I decided to share with you. Now let's talk to the injection technology, the real injection technology for which we are gathered here. Now before entering into the subject, we have to understand that where we are providing the injections. We are giving injection जहाँ पे क्रैक होता है, जहाँ पे honeycombing होता है, जहाँ पे हमको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग की जरूरत होता है, जहाँ पे हमको वाटरप्रूफिंग की जरूरत होता है, तो मेन एरिया हमारा इंजेक्शन देने का होता है क्रैक. क्रैक के लिए कुछ चीज जानना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आप अगर मुझे पूछेंगे, मैं अगर मेरा व्यू बताऊंगा, तो क्रैक का क्या, क्रैक इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ ए स्ट्रक्चर. क्रैक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. क्रैक एक सिम्टम्स होता है स्ट्रक्चर का कि दैट स्ट्रक्चर इज नॉट वेल. आप अगर मुझे पूछेंगे कि सुजीत हाउ आई एम गोइंग टू रिपेयर द क्रैक, मेरे लिए बहुत मुश्किल है आंसर देना. क्यों क्यों आंसर क्यों मुश्किल है? बिकॉज क्रैक को ऐसे नहीं कि कोई क्रैक को आप फिल कर दो आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट हो जाएगा. क्रैक को ऐसे ही रिपेयर नहीं किया जाता. क्रैक को अगर परफेक्टली रिपेयर करना होता है तो पहले ये डायग्नोस करना बहुत जरूरी है कि क्रैक क्यों हुआ है. क्रैक का रीजन डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है. वंस एक बार रीजन पता चल जाता है क्रैक का, देन आपको उसका ट्रीटमेंट करना इजी हो जाता है. क्रैक इज जस्ट लाइक ए फीवर. जैसे हमारे बॉडी में फीवर आता है, फीवर इज नॉट ए डिजीज, फीवर इज ए सिम्टम दैट वी आवर बॉडी इज नॉट वेल. तो पहले फीवर का रीजन फाइंड आउट करेंगे तो सॉल्यूशन करना बहुत इजी होता है. इन द सेम वे क्रैक इज ए सिम्टम. तो इसलिए क्रैक में हमको क्या स्टडी करना चाहिए? नॉर्मली टाइप ऑफ क्रैक, क्रैक का प्रोग्रेशन, क्रैक विड्थ, चेंज इन क्रैक विड्थ, कंडीशन ऑफ द क्रैक भी देखना चाहिए, एंड सम एस्टिमेटेड रीजन फॉर द क्रैक्स. ठीक है ना. नाउ अभी क्रैक के बारे में दूसरे कोड क्या बोलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. जैसे कि EN 1992 जो कोड है, जिसमें डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में बताया गया है. आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली ऑल दिस एक्सपोजर कंडीशंस इन माय नेक्स्ट स्लाइड. तो उसमें जो नॉर्मल एक्सपोजर के लिए जो क्रैक को बताया गया है फॉर एनी काइंड ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, दैट इज 0.4 mm मैक्सिमम टॉलरेबल क्रैक विड्थ, whereas for the pre-stressed concrete it is maximum 0.2. बट अगर मीडियम एक्सपोजर टू हाई एक्सपोजर जहाँ पे है, तो इन दैट कंडीशन मैक्सिमम टॉलरेबल क्रैक विड्थ फॉर एनी काइंड ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर इज 0.3, whereas for pre-stressed concrete it is 0.2. नाउ ये है हमारा एक्सपोजर कंडीशंस एज पर EN 1992, जहाँ पे X0 मतलब नो रिस्क ऑफ कोरोजन अटैक, XC मतलब रिस्क ऑफ कार्बोनेशन इंड्यूस कोरोजन, XD मतलब रिस्क ऑफ क्लोराइड इंड्यूस कोरोजन अदर देन सी वाटर, XS मतलब रिस्क ऑफ क्लोराइड इंड्यूस कोरोजन विद सी वाटर, XF मतलब रिस्क ऑफ फ्रीज एंड थाउ अटैक एंड केमिकल अटैक. ओके, सो
लेट्स नॉट गो EN 1992 में इसका सब कैटेगरीज भी है, X1 X2 X3 XC का सारे चीज का सब कैटेगरी है. लेट्स नॉट गो इन डिटेल, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. बट यस, अगर हम ISO की बात करेंगे, अगर हम ISO का जो स्पेसिफिकेशन है उसमें जो टॉलरेबल क्रैक रेट थे फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट क्रैक रेट भी उसमें ऑलरेडी स्पेसिफाइड है. नाउ अगर हम जो हमारा जर्मन का गाइडलाइंस के बेसिस पे अगर देखेंगे, जो DFSTB का जो गाइडलाइन होता है उसमें फॉर एनी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में दे हैव डिफाइंड दैट व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे दे आर डिफाइनिंग द क्रैक विड्थ. Definitely, as we know, for any kind of water retaining structure, उसका जो loading होता है वो triangular shape में होता है. तो in that condition, अगर HW by HB, HW क्या होता है? HW is the water head for water head emitter, and HB is the thickness of that concrete. जो concrete आपको वो particular water head को जो control कर रहा है, that is the HB. So HW by HB अगर आपका 10 से कम है तो मैक्सिमम टॉलरेबल क्रैक विड्थ आपका 0.2 है. अगर आपका वो HW by HB अगर 15 से 25 के अंदर है तो it should be 0.1. that is for sure. Now अगर इंजेक्शन टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो ये चार चीज जानना बहुत जरूरी है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ इंजेक्शन टेक्नोलॉजी. एक होता है आपका इलास्टोमर रेजिन, और एक होता है आपका हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन, और एक होता है आपका ड्यूरोमर रेजिन. देन उसके बाद आता है मिनरल सस्पेंशन. इलास्टोमर रेजिन क्या होता है? इलास्टोमर रेजिन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है. बट जो ये जो जरूरी टर्म है जो हम EN 1504 के बेसिस पे वहाँ पे तीन कैटेगरीज ऑफ उसमें इंजेक्शन चीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला चीज आता है फोर्स ट्रांसमिटिंग फिलिंग टाइप, whereas all kind of जिसमें जो लोड कैरिंग करता है which is called the structural injections. स्ट्रक्चर जो कि सुपर स्ट्रक्चर का लोड सब स्ट्रक्चर में कैरी फॉरवर्ड करता है. फॉर दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस वो स्ट्रक्चर में अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी नीड फोर्स ट्रांसमिटिंग टाइप. तो उसके लिए डेफिनेटली वी हैव टू चूज ड्यूरोमर टाइप रेजिन्स और मिनरल टाइप रेजिन, मिनरल सस्पेंशन टाइप ऑफ रेजिन. अगर हमको डक्टाइल फिलिंग चाहिए, अगर हमको फ्लेक्सिबल फिलिंग चाहिए, इन दैट कंडीशंस वी हैव टू गो फॉर द इलास्टोमर रेजिन. अगर स्वेलिंग फिटेड फिलिंग हमको चाहिए देन वी कैन गो फॉर द हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन. ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. अभी इंजेक्शन का जो एप्लीकेशन आता है तो जैसे कि यहाँ पे तीन कैटेगरी में हम हमारे इंजेक्शन एप्लीकेशन को डिफाइन किए हुए हैं. वन इज फॉर द स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस और इन बिटवीन द स्ट्रक्चर्स. इन बिटवीन द स्ट्रक्चर मीन्स एनी काइंड ऑफ जॉइंट्स, और ये हो जाता है आपका इन द स्ट्रक्चर्स. मान लीजिए हमको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग की बात आता है, और एक हो गया है कि सब स्ट्रक्चर का बात है. ठीक है, अगर हमको इन द स्ट्रक्चर, अगर सुपर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट क्या रहता है? फोर्स फिटिंग की रिक्वायरमेंट रहता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग की रिक्वायरमेंट रहता है, वाटर टाइटनिंग की रिक्वायरमेंट रहता है, और कोई भी जॉइंट होता है जो स्ट्रक्चर में हमारा स्ट्रक्चर जॉइंट में डेफिनेटली वाटर टाइटनेस की भी जरूरत होता है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत होता है. अगर कंस्ट्रक्शन ग्राउंड सबस्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वी नीड सॉल्यूशन फॉर स्टेबलाइजेशन, वाटरप्रूफिंग एंड एक्सटीरियर वाटरप्रूफिंग के लिए भी हमको जरूरत होता है. ठीक है, वाटर टाइटनिंग जिसको हम बोलते हैं कट एंड ग्राउटिंग, वी विल डिस्कस इन लेटर. तो ये सारे रिक्वायरमेंट के लिए हम ये यूज कर सकते हैं. फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स ट्रांसमिटिंग टाइप हम ड्यूरोमर रेजिन इस्तेमाल करेंगे, या तो मिनरल सस्पेंशन. मिनरल सस्पेंशन मींस एनी काइंड ऑफ सीमेंटिशियस प्रोडक्ट. और अगर अंडरग्राउंड की हम बात करेंगे फोर्स ट्रांसमिटिंग टाइप, जिसको हम टू इंक्रीज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, we can go for any kind of polyurethane based ड्यूरोमर्स. There are lots of things are there. Polyurethane is there, then organomineral based is there, then cementitious is there. There are lots of things we can recommend. Epoxies also we can recommend. For ductile filling also definitely elastomer and fast forming elastomer भी है, और हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन है, बिकॉज आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, वाटर टाइटनेस भी चाहिए, और उसमें स्वेलिंग प्रॉपर्टीज भी चाहिए.
और जब हम अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, जब हम कटन ग्राउटिंग की बात करते हैं, कंप्लीट वाटर टाइटनेस की बात करते हैं, तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी नीड दिस हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन को भी जरूरत होता है। ठीक है, तो नॉर्मली एमसी के पास दो तरह का हम इंजेक्शंस डील करते हैं फॉर स्ट्रक्चर्स। पर जो भी प्रोडक्ट हम सुपर स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज डिनोटेड एज एमसी इंजेक्ट, और जो सब स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं दैट इज डिनोटेड कॉन्टेंट इंजेक्ट। तो एक बार इंजेक्शन से पहले एक बार पंप के बारे में बता कर लेते हैं, बिकॉज विदाउट नीडल, विदाउट सीरीज वी कैंट गिव द इंजेक्शंस टू एनीबॉडी। तो पहले सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो इंजेक्शन पंप्स जो है दिस इज MC 510, इट इज ए बेसिकली सिंगल कंपोनेंट पंप है, और ये जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली वी आर रिकमेंडिंग फॉर द सीमेंटिशियस ग्राउटिंग के लिए, और ये जो प्रोडक्ट है वी आर रिकमेंडिंग दिस फॉर द 2 कंपोनेंट इंजेक्शन ग्राउटिंग के लिए। तो अभी सिंगल कंपोनेंट पंप में क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल कंपोनेंट पंप और डबल कंपोनेंट पंप। सिंगल कंपोनेंट पंप पे क्या होता है कि एक ही पॉट पे कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिक्स किया जाता है एंड उसको इंजेक्ट किया जाता है, इट इज वेरी सिंपल। बट डबल कंपोनेंट पंप में क्या होता है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है एंड वो दोनों अलग अलग पाइप से जाता है एंड वो सिर्फ नोजल में मिक्स होता है। तो आप मुझे यहाँ पे पूछेंगे कि डबल कंपोनेंट पंप किस टाइप का इंजेक्शन के लिए हम रेकमेंड करेंगे। डबल कंपोनेंट पंप हम वहाँ पे रेकमेंड करेंगे जहाँ पे कोई भी इंजेक्शन मटेरियल का रिएक्शन टाइम फास्ट होता है, जहाँ पे हमको क्विक सेटिंग लाइक 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड में जहाँ पे हमको क्विक सेटिंग चाहिए, इन दैट कंडीशंस हमको डबल कंपोनेंट पंप रेकमेंड करना होता है। ठीक है, so these are the packers we are recommending for different applications. These are the surface packers, these are in metal form and these are in the plastic form, and these are called the hammer packers, and these are for the needle packers. Okay, needle packers basically we are recommending for high pressurized grouting, एंड फॉर नॉर्मल प्रेशर ग्राउटिंग के लिए हम ये सरफेस पैकर यूज करते हैं, और जहाँ पे हमको कटन ग्राउटिंग करना होता है, हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन ग्राउटिंग करना पड़ता है, वी कैन रिकमेंड दिस काइंड ऑफ नीडल पैकर्स आल्सो। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट पैकर्स इज आल्सो एप्लीकेबल अवेलेबल है मार्केट में एज पर द डिफरेंट साइट रिक्वायरमेंट। आज के तारीख में वी आर इंट्रोड्यूसिंग निडल पैकर्स ऑल्सो, जो कि आप पंक्चर कर सकते हैं कोई भी EPDM गैस्केट और उसको निकाल सकते हैं, सो दैट विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर, विदाउट ड्रिलिंग द स्ट्रक्चर ऑल्सो, दैट काइंड ऑफ पैकर ऑल्सो कैन बी रिकमेंडेड। अभी बात आता है कि प्रेशर कितना होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग पूछते हैं कि प्रेशर कितना रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ये भी पूछते हैं कि आपका इंजेक्शन में हम कितना प्रेशर में करते हैं। देखिए, प्रेशर का अगर बात करेंगे, जो भी प्रेशर 10 बार से नीचे होता है वी कैन से इट इज ए लो प्रेशर, और जो प्रेशर मोर देन 60 बार से ज्यादा होता है वी कैन से इट इज ए हाई प्रेशर। ओके, नॉर्मली फॉर एनी काइंड ऑफ एडिशन पैकर, जो मैंने ये बताया, ये जो एडिशन पैकर्स है, ये जिस तरह ये एडिशन पैकर्स, ये स्टील वाला एडिशन पैकर्स maximum 60 bar pressure ले सकता है, and this kind of plastic addition packer can able to take 30 maximum 30 bar pressure. ठीक है, अनुजीत સાહેબ ને એના આગલા દિવસે જ કૃપાલુની ઓફિસે આખો દિવસ હતો, કૃપાલુ રોજ આને મળવા જાય કે મને can anyone asking anything? Okay, सो नॉर्मली इतना होता है। अगर ड्रिल पैकर की हम बात करेंगे तो ड्रिल पैकर में नॉर्मली उसका प्रेशर मैक्सिमम 200 बार प्रेशर तक भी हम दे सकते हैं। लेकिन प्रेशर ऐसा नहीं कि कहीं पे हम 30 बार कोई ले सकता है तो मतलब हम 60 बार ही प्रेशर देंगे। अगर 200 बार भी कोई पैकर ले सकता है तो मतलब हम 200 बार पैकर प्रेशर देंगे। प्रेशर कैसे डिसाइड करेंगे? प्रेशर डिसाइड करने का 2 फैक्टर है। पहला, कंक्रीट का स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा। कंक्रीट मैक्सिमम प्रेशर कैसे डिसाइड करेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिवाइडेड बाय 3 into 10, दिस इज द थंब रूल। अगर मान लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट से M30, तो उसका प्रेशर कितना होगा? 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10।
10 into 10 is equal to 100. So maximum we can provide 100 pressure. उससे ज़्यादा हम प्रेशर अगर देंगे तो कंक्रीट क्रैक करने का खतरा रहता है, तो उतना प्रेशर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कंक्रीट 100 बार प्रेशर लेने का काबिल है तो हम उसको पॉजिटिव, हम उसको फोर्सिबली 100 बार प्रेशर ही देंगे, ठीक है। दूसरा फैक्टर डिसाइड करता है जो प्रेशर के ऊपर, दैट इज द पोरोसिटी ऑफ द कंक्रीट। अगर आपका कंक्रीट में पोरोसिटी ज़्यादा है तो वो कम प्रेशर लेगा। अगर कंक्रीट का पोरोसिटी कम है तो वो ज़्यादा प्रेशर लेगा। जितना पोरोसिटी कम होगा प्रेशर हेड आपको उतना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी इंजेक्शन के टाइम, इंजेक्शन से पहले वी कैन नॉट डिसाइड कि इंजेक्शन का प्रेशर 60 MPa 60 बार होना चाहिए या 50 बार होना चाहिए या 5 बार होना चाहिए। इंटेंशन वो नहीं होना चाहिए। इंटेंशन हमारा ये होना चाहिए कि इफेक्टिव ग्राउटिंग होना चाहिए। 3 बार प्रेशर में भी इफेक्टिव ग्राउटिंग हो सकता है, इंजेक्शन ग्राउटिंग हो सकता है, 10 बार में भी इफेक्टिव ग्राउटिंग हो सकता है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसा है। ब्रिक मशीनरी में नॉर्मली प्रेशर बहुत ही कम जाता है। 30 बार प्रेशर भी कोई भी ब्रिक मशीनरी के लिए काफ़ी हाई प्रेशर माना जाता है, क्योंकि उसमें पोरोसिटी काफ़ी हाई रहता है। इंजेक्शन पैकर्स में नॉर्मली जो हम प्लेस करेंगे, ये उसका बेसिक थंब रूल होता है कि जब हम इंजेक्शन पैकर प्लेस करेंगे वी विल प्लेस इट ऑन द क्रैक लाइनिंग के ऊपर ही हम इसको पोजिशनिंग करेंगे। और पैकर टू पैकर जो डिस्टेंस रहेगा इट शुड बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द कंक्रीट। ये थंब रूल है। आप अगर पूछेंगे कि अगर मेरा कंक्रीट का थिकनेस 1 मीटर है तो क्या मैं पैकर टू पैकर डिस्टेंस 1 मीटर रखूंगा? नेवर, नॉट एट ऑल। तो नॉर्मली हमारा कोई भी पैकर टू पैकर डिस्टेंस नॉर्मली हम मिनिमम इट शुड बी 75 mm रख सकते हैं या उससे भी कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अगर इंटेंसिटी काफ़ी हाई है वाटर का तो हम और भी कम डिस्टेंस ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ये एक वीडियो आप देखिए व्हिच विल डिफाइंस हाउ दिस इंजेक्शन बीइंग डन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। This is the way how we will place the surface packers. ओके, सो दिस इज द वे नॉर्मली सरफेस पैकर इस तरह से यूज होता है। और अगर हम ड्रिल पैकर्स की बात करेंगे, ड्रिल पैकर्स का स्पेसिफिकेशन जो पोजीशनिंग होता है वो हमेशा जिग-जैग वे में होता है। तो अगर ये क्रैक है कोई कंक्रीट में तो ये जो ड्रिल पैकर्स ये जिग-जैग वे में इस तरह से हम प्लेस करेंगे। और packer to packer distance it should always be as the thickness of the concrete as per the thumb rule. अगर zigzag वे में देखेंगे it should be t/2 thickness, ये जो thickness होगा उसका आधा होगा, ठीक है। नाउ इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ।
अरे वेट ज्यादा हो जाएगा। This is the injection procedure for when the structure is in the dam condition. But if there will be heavy pressurized water, then we have to do the injection in a two-step method. Fine. अगर हमको पूरा का पूरा वॉल को डेंसिफाई करना है एंड कंप्लीटली इंजेक्ट करके पोर ब्लॉकिंग करना है, तो दिस इज द वे वी कैन प्लेस द पैकर्स थ्रू एंड थ्रू द वॉल. तो हम उसको प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ स्लाइड्स टू शो यू. नाउ लेट्स कम टू द ड्यूरामोर रेजिन. ड्यूरामोर रेजिन क्या होता है? ड्यूरामोर रेजिन जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, जो आपको प्रोवाइड करे, जो कि लोड कैरी करेगा. इट शुड बी वेरी हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए इसका. इट शुड हैव गुड एडिशन. इट शुड हैव वेरी स्ट्रेंथ होना चाहिए. हार्डनिंग अंडर लो क्रैक, मूविंग, लॉन्ग लाइफ, लाइक इपॉक्सी. इपॉक्सी इज ए ड्यूरामोर रेजिन. इपॉक्सी जब भी सेट होता है वो कंप्लीटली हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है. तो ड्यूरामोर रेजिन का सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है कि यू शुड कोई भी इपॉक्सी बेस्ड ड्यूरामोर रेजिन अगर कुछ है तो आप उसको वाटर के कांटेक्ट में ना लाएं तो अच्छा है, क्योंकि ड्यूरामोर रेजिन, इपॉक्सी जैसा ड्यूरामोर रेजिन वाटर के कांटेक्ट में काम नहीं कर सकता. तो इसीलिए दे आर यूजिंग मॉइस्चर इंसेंसिटिव इपॉक्सीज. बट नाउअडेज टेक्नोलॉजी इज कंप्लीटली चेंज्ड. वी कैन प्रोड्यूस PU based ड्यूरामोर रेजिन. What is the advantages of PU based ड्यूरामोर रेजिन? PU based ड्यूरामोर रेजिन आपको इपॉक्सी जैसा स्ट्रेंथ देगा और इसका डॉक्टाइल स्टेबिलिटी भी है और इट वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आल्सो. इट मींस मॉइस्चर इनसेंसिटिव इपॉक्सी से भी बेटर परफॉर्मेंस आपका PU देता है. तो इसीलिए PU बेस्ड ड्यूरामोर, जहाँ पे हमको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग की जरूरत आता है तो वहाँ पे वी विल रिकमेंड दिस काइंड ऑफ ड्यूरामोर रेजिन, PU बेस्ड ड्यूरामोर रेजिन. ठीक है. एंड दिस इज वेरी ड्यूरेबल. अगर इसका हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस चार्ट, तो टेम्परेचर अगर राइज करता है कोई भी ड्यूरामोर रेजिन, अगर टेम्परेचर राइज करता है तो उसका पॉट लाइफ भी कम हो जाता है और उसका विस्कोसिटी भी बढ़ जाता है. तो इसीलिए ड्यूरिंग एप्लीकेशन इसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है. एम्बिएंट टेम्परेचर और साइड टेम्परेचर को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. दैट प्रिकॉशन वी नीड टू टेक. नहीं तो विस्कोसिटी ड्रास्टिकली फॉल करेगा और वो प्रॉपर इंजेक्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगा हमको. देन व्हाट इज इलास्टोमर रेजिन? इलास्टोमर रेजिन मींस इट शुड बी इलास्टिक. इट इज नॉट गिविंग यू ए रॉक काइंड ऑफ फीलिंग. इट विल गिव यू ए वेरी इलास्टिक फीलिंग. तो वो आपका स्ट्रक्चरल लोड नहीं ले पाता है. तो नॉर्मली कोई भी इलास्टोमरिक रेजिन हम वहाँ पे लेंगे जहाँ पे सिर्फ वाटर प्रूफिंग की रिक्वायरमेंट आता है. ओके. तो जैसे कि यहाँ पे देखिए इलास्टोमर रेजिन, जैसे कि खाली पानी आ रहा है तो वी कैन इंजेक्ट एनी इलास्टोमर रेजिन ओवर हियर. जहाँ पे नॉर्मल पानी आता है तो अगर पानी का प्रेशर काफ़ी हाई है तो पहले हम उसको फोम देंगे, जैसे कि हमने वीडियो में देखा. फोम देंगे, उसके बाद हम उसको इलास्टोमर रेजिन देंगे. अगर कैविटीज़ है, थ्रू एंड थ्रू आपको करना है तो आपको इलास्टोमर रेजिन ही आपको देना बेटर होगा. अगर आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के साथ भी वाटर प्रूफिंग की जरूरत होगा तो आपको PU बेस्ड ड्यूरामोर रेजिन देना होगा. कोई भी इलास्टोमर रेजिन का भी प्रॉपर्टी सेम रहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉट लाइफ कम हो जाता है और विस्कोसिटी भी बढ़ जाता है. तो इसीलिए उसका भी टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है. ये एक वीडियो देखिए व्हिच विल गिव यू ए ब्रीफ आइडिया अबाउट द इलास्टोमर रेजिन.
दिस इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए इलास्टोमर रेजिन, जो कि ड्यूरेमर प्रोडक्ट आपको नहीं दे पाएगा. Right. Now, in elastomer resin, we can talk about the foam also, because जहाँ पे heavy pressurized water आता है, in that conditions हमको foam forming compound भी देना पड़ता है. आप पहले ये वीडियो देखिए, then मैं आपको बताता हूँ. ये कोई भी फोम वाला इंजेक्शन ऑलवेज इट इज अवेलेबल इन ए सिंगल कंपोनेंट फॉर्म, और ये जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तभी जाके ये फोम बनता है. ये अपना ओरिजिनल वॉल्यूम से 3000% एक्स्ट्रा स्वेल करता है एंड इट मेक्स ए फोम. See the volume of foam. In foam in pure foam, there are two types of pure foam available in the market. It is also available with us. One kind of pure foam is called open cell foam, and another kind of pure foam is called the closed cell foam. This is called the open cell foam. Why it is called open cell? Because of this reason. It has lots of cavity and it can hold water. So what is the main objective to use this kind of open cell foam if it holds water? Main objective is to minimize the pressure of the water. जहाँ पे वाटर का प्रेशर काफी हाई रहता है, वहाँ पे ये फोम उसका प्रेशर से भी काउंटर करके हम यूज करते हैं, सो दैट ये कंप्लीटली आपका वाटर टाइट बना ले. और एक बार वाटर का प्रेशर मिनिमाइज हो जाएगा तो आप उसके बाद कोई भी बैकअप इंजेक्शन आप दे सकते हो. आप बेसिकली इलास्टोमेरिक देना बेटर होता है. अगर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देना है, देन यू कैन गो फॉर द प्यू बेस्ड ड्यूरेमर रेजिन. लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है हम सबके लिए, कि जहाँ पे हम ये प्यू फोम इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं, इट शुड ऑलवेज बी backed by any kind of low viscous resin injection. अगर प्यू फोम इंजेक्शन के बाद आप अगर लो विस्कस इंजेक्शन नहीं देते हैं, देन आपका वाटरप्रूफ आपका इंजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा. Now, if we will talk about the mineral suspension injection means a cementitious product. तो कोई भी cementitious product का performance डिपेंड करता है उसका फाइननेस के ऊपर. तो जो भी प्रोडक्ट जितना ज्यादा फाइन होगा वो उतना माइक्रो लेवल क्रैक तक फिल अप कर पाएगा. ठीक है, बट नॉर्मली ये देखा गया है कि कोई भी रेजिन बेस्ड इंजेक्शन लाइक इपॉक्सी और पॉलीयूरेथेन जितना फाइन क्रैक को फिल करेगा उतना फाइन क्रैक को मिनरल सस्पेंशन फिल अप नहीं करता है. बट एनीवे जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है, सस्ते में रिक्वायरमेंट रहता है, तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर, जहाँ पे ओनली पोर ब्लॉकिंग की रिक्वायरमेंट रहता है, वी कैन गो फॉर द मिनरल सस्पेंशन. लेकिन अगर उसको हम प्रॉपर्टीज वाइज देखेंगे कि मिनरल सस्पेंशन, एनी काइंड ऑफ मिनरल सस्पेंशन इंजेक्शन इज ऑलवेज गिव्स यू द ड्यूरोमर प्रॉपर्टीज, नॉट द इलास्टोमर प्रॉपर्टी.
सो कोई भी मिनरल इंजेक्शन का क्या उसका बेसिक प्रॉपर्टीज रहता है, ये इसका it increase the compressive strength and it is provides corrosion protection, it has got long pot life, but इसका जो प्रॉब्लम है it is no addition which are changes in crack width, flowing water might wash out the material, तो जहाँ पे pressurized water रहेगा तो वहाँ पे कोई भी सीमेंटिशियस इंजेक्शन डैम्पनेस है तो चलेगा, लेकिन अगर फ्लोएबल वाटर है तो वॉश आउट होने का काफी चांस। इसका भी प्रॉपर्टीज भी सेम है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पॉट लाइफ भी कम हो जाएगा और इसका विस्कोसिटी का भी चेंज नहीं होता है, बिकॉज आप अगर विस्कोसिटी कम हो जाएगा तो यू कैन ऐड वाटर, क्योंकि उड़ेगा तो पानी ही उड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड द हाइड्रोस्ट्रक्चर। Hydrostructure resin normally this is a kind of swellable hydrostructure which presents in form with works in presence of water। तो ये हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन का नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर को कटन ग्राउटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कटन ग्राउटिंग? यू कैन इमेजिन दिस इज अ टनल और एनी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में जो पानी आता है दैट ऑल वाटर कम्स फ्रॉम दिस सॉइल, और ये क्या करता है, या अगर आपका कंक्रीट वीक है तो कंक्रीट को थ्रू एंड थ्रू करके पानी आ सकता है, या तो जॉइंट के थ्रू पानी आ सकता है। अच्छा, ये पानी क्यों आएगा? बिकॉज जो अगर ये पॉजिटिव साइड में वाटर प्रूफिंग अगर फेल होता है, नॉर्मली कोई भी टनल कंस्ट्रक्शन के लिए पॉजिटिव साइड के लिए दे आर यूजिंग 2 mm PVC मेम्ब्रेन। तो अगर मेम्ब्रेन सिस्टम उसका फेल हो जाता है, वाटर प्रूफिंग फेल हो जाता है, तो दिस काइंड ऑफ वाटर लीकेजेस कैन अकर। तो एक बार टनल बन जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एवरीबॉडी विल टेल यू कि आप इंजेक्शन करो। अभी इंजेक्शन इज ऑलवेज ए ब्लाइंड फोल्ड थ्योरी। आप ये एरिया को इंजेक्शन में सील करेंगे तो इस एरिया से पानी आएगा जो अभी तक कभी नहीं आया था, फिर आप ये एरिया को सील करेंगे तो फिर यहाँ से आएगा, क्योंकि वाटर ऑलवेज वीकर पाथ ही ढूंढता है। तो जो वीकर उसको मिलेगा, नेक्स्ट वीकर सेक्शन उसको मिलेगा, उसी के थ्रू पानी लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इंजेक्शन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर इंजेक्शन आप करेंगे तो भी आपका 100% एश्योरेंस मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन इंजेक्ट करते हैं, हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन में क्या होता है, हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन में वी आर नॉट इंजेक्टिंग एनी काइंड ऑफ इंजेक्शन मटेरियल ऑन द स्ट्रक्चर, हम हमेशा उसको आर पार कर देते हैं। ये है सॉइल, ये है स्ट्रक्चर, इस बीच में जो गैप है ये गैप में देते हैं, उसमें इस तरह का पैकर हम यूज करते हैं। आप देखो ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम इंजेक्शन मटेरियल इंजेक्ट करेंगे और इंजेक्शन मटेरियल पूरा थ्रू एंड थ्रू कंक्रीट आके यहाँ पे ये इस तरह से फैल गया है बाहर की तरफ, और ये बाहर की तरफ कैसे फैलता है, इस तरह से बॉल जैसा बन जाएगा और ये कंप्लीटली एक ऐसा कॉटन बना देगा। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको परफेक्टली पता चल जाएगा हाउ इट विल बी डन। ये जो हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन, इसका एक और एडिशनल एडवांटेजेस है कि इसका जो रिएक्शन टाइम है ये इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट चाहिए, जैसे कि क्विक रिएक्शन टाइम चाहिए जैसे कि 9 सेकेंड, तो भी हम कर सकते हैं। 30 सेकेंड चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, जितना चाहिए दैट वी कैन डू। और ये हमेशा 5 कंपोनेंट में अवेलेबल है। तो A1 A2 A3 प्रॉपर रेशियो मिलाना पड़ेगा, देन उसके साथ B कंपोनेंट के साथ पानी मिलाना पड़ेगा और AB 1:1 कंपोनेंट पे मिला देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद एक TX एक प्रोडक्ट है जिसमें पानी के बदले आप पॉलीमर मिलाएंगे, तो रेशियो इज द सेम। Just watch this video, it will give you a very brief idea about how this cotton grouting been done.
See, all the injection is been make a curtain so that water कभी आपका concrete के अंदर touch भी नहीं कर पाता है, and this is the very effective way of doing the curtain grouting. आइए इसका सक्सेस रेशियो भी 100%। अगर आपका स्ट्रक्चरल जॉइंट है, कोई भी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में अगर आपका स्ट्रक्चरल जॉइंट है, जैसे कि आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मुंबई में मुंबई मेट्रो का जो काम चल रहा है, मेट्रो 3 प्रोजेक्ट, वो उसमें वहाँ पे 32 किलोमीटर इज बिलो ग्राउंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। ये 32 किलोमीटर का जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, तो उसमें वो टीबीएम मेथड में दे आर डूइंग द टनलिंग। तो टनलिंग में क्या होता है कि दे आर कास्टिंग प्रीकास्ट पैनल को 1 by 1 रिंग बना के दे आर गोइंग अप, और जो each and individual panel is connected by through EPDM gaskets. तो कभी कभी क्या होता है, इन 5 to 10% के केस में वो जो जॉइंट टैग के टाइम पे बिकॉज ऑफ सम प्रेशर इंस्टॉलेशन वो क्रैक हो जाता है, जिस वजह से वाटर प्रेशर तो काफ़ी हाई है ना वहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ दैट वाटर प्रेशर वो कंटिन्यूसली लीकेजेस चालू हो जाते हैं, एंड दे उस जॉइंट को वो रिजिड ग्राउटिंग भी नहीं कर सकते बिकॉज एक्सपेंशन कंट्रैक्शन और ट्रेन जाने के टाइम पे जो वाइब्रेशन है उसको वो कुशनिंग देता है। तो इन दैट कंडीशंस दिस काइंड ऑफ इंजेक्शन कैन बी रिकमेंडेड फॉर दिस काइंड ऑफ अंडरग्राउंड एप्लीकेशन। यू जस्ट सी दिस वीडियो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। यहाँ पे हम पोर कर रहे हैं इन दिस जॉइंट, जो हम एक्सपेंशन जॉइंट जैसा ट्रीट करेंगे और फ्लेक्सिबल जॉइंट जैसा ट्रीट करेंगे, बट इन नॉर्मल साइड कंडीशंस वी कैन इंजेक्ट इट बाय इंजेक्शन मशीन for arresting water leakages through this kind of flexible joints. सर एक क्वेश्चन है। जी सर बोलिए। Sir, I am Mrinal. I am from a company called Stronghold Coatings. We are applicators for BSF. We are using in all kind of basement and other cracks, that gel, methacrylate gel only. Methacrylate gel only, Yeah. 901 of Master Seal, and it is giving excellent result. You told only Yes. in those areas where I have to inject the resin up to the outside, Yes. then only this can be used, but we are using it perfectly well in the case of cracks. We are putting packers and injecting it this Yes. resin and not facing any problem as such in Correct. No, you are absolutely right. See, methyl methacrylate as a polymer, it is a very old age technology. It is not the new technology nowadays. Okay. So methyl methacrylate का अभी advanced version जो है, this is the hydrostructured resin, because nowadays we are more talking about the environmental friendly products. Okay. So these products are environmental friendly, whereas methyl methacrylates are not environmental friendly. They see performance wise, if you will tell me this kind of hydrostructured resins will perform better as comparison to methyl methacrylates. But yes, you are absolutely right. methyl methacrylates is performing very well. वो करता भी है। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन बिकॉज दिस इज द एडवांस टेक्नोलॉजी। See the flexibility of this product. I don't think that methyl foam for leakages or methyl. Hello. See, इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, बिकॉज सी एवरी अगर एज ए सिविल इंजीनियर अगर मुझे पूछेंगे, मैं कहूँगा कि सारे सिस्टम अच्छा है, ठीक है, कोई भी सिस्टम बुरा नहीं है। तो फिर बुरा क्या है? बुरा है पोजिशनिंग, कि हम कौन सा स्ट्रक्चर के लिए क्या हम रिकमेंड करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सारे सिस्टम इज परफेक्ट, बट हर चीज का अपना अपना लिमिटेशन है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो मैं बोलना चाहता था कि ये जो हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन जो दिखाया, जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी मैं दिखाया, जो 180 डिग्री उन्होंने रोटेट किया, फिर इतना बड़ा स्लैब को लेके फिर कोशिश किया कि उसको डीबॉन्ड करवाने का,
none of the product, neither PU nor methyl methacrylate will can be giving you such kind of high strength. हाँ जी सर, हेलो हेलो, एक मिनट है, जस्ट अ मिनट. ओके, हाँ जी, क्या बोल रहे थे? हेलो. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था कि बेसिकली ये जो मटेरियल के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन के बारे में बताया कि मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको और कहीं पे भी ये जो प्रॉपर्टीज हमने अभी डेमोन्स्ट्रेशन किए, कोई भी पीयू में ना ही मिथाइल मिथाइलेट में ये आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी जो ऑर्गेनाइज किए मिस्टर धवन जी के पास ये प्रोडक्ट वेरी वाइडली अवेलेबल इन दिल्ली. तो आप ये उनसे कांटेक्ट करके प्रोडक्ट का एक सैंपल लेके आप डेमो भी कर सकते हैं साइट में. दोज हु आर एप्लीकेटर्स, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ देम. तो क्योंकि जब तक आप खुद ये प्रोडक्ट को बिलीव नहीं करेंगे तो वो ये नहीं कर सकते, ठीक है ना. एक्चुअली एमके धवन जी जो हैं, मैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ. बेसिकली ही इज़ अ चेयरमैन एंड एसोसिएशन फॉर हमारा जो वाटरप्रूफ एसोसिएशन है हमारा इंडिया का. एंड तो आप उनके साथ जुड़ भी सकते हैं. यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस वाटरप्रूफिंग एसोसिएशन ऑल्सो, ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. देन वी विल फिनिश ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. देन आपका जो भी सवाल है वी विल डिस्कस एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. तो अभी ये बहुत ज़रूरी है बात करने का कि जो इंजेक्शन की हम बात करेंगे, इतना सारा जो मटेरियल के बारे में हम देखें, वो मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली दो चीज़ बहुत ज़रूरी है. आपने भी कई बार सुने होंगे कि जो भी आप कोई भी इंजेक्शन रेजिन के बारे में बात करेंगे, एवरीबॉडी विल टेल यू दैट हमारा लो विस्कोसिटी प्रोडक्ट की ज़रूरत है. कैन यू प्लीज गिव मी 1 मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. तो नॉर्मली जहाँ पे भी हम आज की तारीख में इंजेक्शन रेजिन की बात करते हैं, ये इंजेक्शन रेजिन में नॉर्मली क्या होता है कि दो चीज़ की हम बात करते हैं. सब बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट लो विस्कोसिटी प्रोडक्ट है. क्लाइंट भी डिमांड करता है कि भाई आपके पास कोई लो विस्कोसिटी प्रोडक्ट है तो बताइए. लो विस्कोसिटी तो एवरीबॉडी नोज, उसका तो नॉर्मली रहता है. लेकिन जब हम एज ए एप्लीकेटर, जब हम मटेरियल चूज़ करेंगे, जब एज ए यूज़र हम मटेरियल चूज़ करेंगे, तो ये जो तीन चीज़ें हमको देखना बहुत ज़रूरी है. एक होता है मास डेंसिटी. डेंसिटी तो डेफिनेटली कम होना ही चाहिए क्योंकि हम इंजेक्टेबल होना चाहिए. हाई थिक और हाई विस्कोस मटेरियल को हम इंजेक्ट नहीं कर सकते, तो डेंसिटी तो एक तो कम होना चाहिए. दूसरा है डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसको हम बोलते हैं कि मेरा मटेरियल का विस्कोसिटी कितना है, लो विस्कोसिटी जिसको हम बोलते हैं. और जो थर्ड पॉइंट जो आज की तारीख में कोई डिस्कस नहीं करता है, दैट इज द सरफेस टेंशन. आई विल डिस्कस विथ यू ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन. व्हाट इज सरफेस टेंशन? नॉर्मली वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो 72 और मर्क्यूरी का जो सरफेस टेंशन होता है वो 476 होता है. सरफेस टेंशन क्या करता है? अगर किसी का सरफेस टेंशन कम होता है तो क्या फ़ायदा है? अगर किसी प्रोडक्ट का सरफेस टेंशन कम होता है तो उसका जो पेनिट्रेबिलिटी काफ़ी बेटर होता है. सरफेस टेंशन में क्या होता है?
अपना पार्टिकल टू पार्टिकल उसका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर किसी पे बढ़ जाता है, टेंशन फोर्स अगर बढ़ जाता है, तो वो पार्टिकल उतना जल्दी मूव नहीं करता है। लेकिन अगर वही टेंशन फोर्स अगर कम हो जाता है तो वो पार्टिकल आराम से अंदर मूव कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंक्रीट क्यूब आप इमेजिन कीजिए। एक कंक्रीट क्यूब के ऊपर में 2 ड्रॉप, एक ड्रॉप मैंने हमारा इंजेक्शन रेजिन का ड्रॉप डाला और फिर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर का इंजेक्शन ड्रॉप डाला जिसका सरफेस टेंशन हाई है, उसका ड्रॉप डाला, विस्कोसिटी दोनों का सेम है, ठीक है। अभी जो ए प्रोडक्ट है जिसका सरफेस टेंशन कम है वो अंदर जुप से चला जाएगा, वैसे खाली एक ड्रॉप डालते ही वो अंदर चला जाएगा। लेकिन जिसका सरफेस टेंशन हाई है वो अंदर जाने में दिक्कत होगा उसको, वो अंदर नहीं जा पाएगा, हालांकि दोनों का विस्कोसिटी सेम है, ठीक है। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द लो सरफेस टेंशन बेस्ड इंजेक्शन प्रोडक्ट along with the low viscosity। तो हमारे पास प्रोडक्ट है जिसका सरफेस टेंशन 24 भी, इट इज लेसर देन द वाटर आल्सो, तो दैट आल्सो वी कैन प्रोवाइड, ठीक है। नाउ तो उसमें क्या होता है, जब आप डायनामिक विस्कोसिटी क्रिएट होता है तो क्या होता है, वो इतना परफेक्टली मूव करता है और इसमें पार्टिकल टू पार्टिकल अपने आराम से फ्लोएबिलिटी बढ़ जाता है। और ये जो फ्लोएबिलिटी को, कंसिस्टेंट फ्लोएबिलिटी को रखने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक बेस्ट जिसको हम बोलते हैं हाइगेन पॉइज़ुली लॉ, वो डिफाइन, वो अगर उसके बेसिस पे अगर हम डिफाइन करेंगे ना तो वो बताता है कि अगर आपका इनपुट एरिया और आपका आउटपुट एरिया अगर सेम है, अगर प्रेशर को हम अगर कांस्टेंट रखते हैं और ये विस्कोसिटी को अगर हम मिनिमाइज कर देते हैं तो आपका वॉल्यूम स्ट्रीम बढ़ जाएगा, हम उतना बेटर ग्राउटिंग हम कर पाएंगे उस सेम वॉल्यूम को, मतलब पूरा फुल वॉल्यूम हम ऑक्यूपाई कर पाएंगे और हमारा अंदर ग्राउटिंग का जो इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द हाइगेन पॉइज़ुली लॉ। तो उसमें एक एग्जांपल देके मैंने आपको दिखाया हूँ। फॉर एग्जांपल हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, इंजेक्शन रेजिन का जो प्रेशर है हमने कांस्टेंट रखा है, और इंजेक्शन रेजिन का पहला प्रोडक्ट का जो विस्कोसिटी है वो हमने 150 पकड़ा है मिलीपास्कल, और दूसरा प्रोडक्ट का हमने विस्कोसिटी पकड़ा है 55, बाकी एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो उसमें आप देखिए कि एक पहला जो फैक्टर है, पहला जो आपका जो वेलोसिटी वॉल्यूम इनटेक रहेगा, उसमें जितना वॉल्यूम इनटेक रहेगा इसमें वॉल्यूम इनटेक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसमें विस्कोसिटी कम है, ठीक है। दैट्स व्हाई विस्कोसिटी आपका डिफाइन करता है एज पर हाइगेन पॉइज़ुली लॉ, वो इफेक्टिवनेस दिखाता है एंड देन उसको और भी ट्रिगर करता है अगर उसका सरफेस टेंशन काफी कम है तो that's why these two parameter is very important for choosing a effective injection material। now उसके साथ हमारे पास प्रोडक्ट भी है जो कि स्लैब लिफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। you just see this video, you can imagine this how this product works। नॉर्मली कोई भी फ्लोर पे जहाँ पे ऐसा कंक्रीट फ्लोर होता है एंड पैनलिंग सिस्टम, अगर वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है सॉइल का, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इकोनॉमिक सॉल्यूशन फॉर दैट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। नहीं तो क्या होता है, आप कंक्रीट को रिपेयर करने जाओगे तो ये रिपेयरिंग नहीं होता है इतना आसानी से,
और अगर होता भी है तो वहीं से वो बार बार टूटता रहता है। Now अभी if we will talk about the joints for different joints, तो different joints में अभी क्या होता है कि we can use any kind of PVC water stoppers for different water stoppers we can use. So यहाँ पे क्या होता है ना, कभी भी हम जॉइंट में ये वाटर स्टफर्स काफ़ी बार फेल होता है। वाटर स्टफर्स बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है और मोस्ट ऑफ द कंडीशन पे we can our water stoppers is failing. So in that conditions, what are the precautions we can take? We can repair that kind of areas by help of any kind of hydrostructure resin or polyurethane. These are some pictorial representation how to treat all these joint failures by help of injection. तो ये बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि इमेजिन कीजिए यहाँ पे ये फेल्यूर हुआ है, तो उसको आप इंजेक्ट करके यू कैन फिल इट लाइक दिस सो दैट इट विल कम्प्लीटली वाटर टाइट। अगर ये किकर सेक्शन आपका फेल्यूर होता है तो भी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन। अगर ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी अगर फेल्यूर होता है तो भी आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं बाय लो विस्कस रेजिन। And this kind of pipe periphery or puddle flange kind of things for any kind of water retaining structure, in that areas also आप उसको इंजेक्ट करके लो विस्कस इंजेक्शन देके आप उसको फिल अप कर सकते हैं। और अगर आपका हनी कम्बिंग अगर होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब ये वाटर स्टॉपर्स हम यूज करते हैं तो बिकॉज ऑफ अनइवन ये जो पीवीसी कंप्लीटली बॉन्ड नहीं होता है कंक्रीट के साथ, प्रॉपर्ली कंपैक्ट भी नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे हनी कम्बिंग होने का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वो एक वाटर पैसेज बन जाता है। तो वो कंडीशन के लिए भी आप उसको ग्राउटिंग करके सील कर सकते हैं। और अगर बीच आपका सीलेंट और उसका सीलेंट और आपका वाटर स्टॉपर्स के बीच भी आप इस तरह से ग्राउट करके उसको सील कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो यू कैन डू इन दिस वे। दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। This is also another example. You can arrest all the honeycombings. This is another example to arrest the honeycombing. So this is all about the presentations. Now I request you all if you can ask questions so that we can discuss. हेलो Yeah, please. सुजीत, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि अभी सब लोग हैं क्योंकि अवेलेबल कि हम लोगों ने मीटिंग टाइम चेंज किया है। पहले जनरली हम लोग मीटिंग किया करते थे लगभग 4 बजे और अब हमने जो टाइम रखा है 7 बजे। तो आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम एवरीबॉडी इफ दे आर कंफर्टेबल विद दिस टाइम सो दैट वी कैन प्लान द फर्दर फ्यूचर मीटिंग ऑन द सेम टाइम ओनली। 4 बजे वाला बेटर रहेगा ना, ये टाइम लोग थक जाते हैं नॉर्मली। आई डोंट नो। अच्छा, थक जाते हैं सर। तो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू फिक्स फॉर 4 o'clock ओनली। हाँ, 4 बजे ज्यादा बेटर है। Will depend on person to person. अच्छा, It will also depend person to person. इन जनरल आई थिंक भाई हम लोगों ने इसलिए फर्स्ट टाइम ऐसा रखा था कि भाई चलो शायद लोग कहीं से अगर आउटसाइड मीटिंग जनरली कोई है तो करके आ जाए टाइम से और 7 बजे आके आराम से बैठ के तो 1-1.5 घंटा आराम से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इवन दो बेटर टू आस्क टू एवरीबॉडी कि भाई if they are comfortable at 7 o'clock then because we have to put lot of meetings in future or in this week also so that everybody should be comfortable. So this is the benefit of everybody. correct. No, it's a very good suggestion. धवन जी, आप सबसे सबका जो भी मेजोरिटी उसी बेसिस पे आप जाइए so that हमारा इंटेंशन तो सबके साथ इंटरेक्शन करना ही है। एक बार आप रिपीट कर दीजिए, ये बात मुझे लगता है सबको कम्युनिकेट हो गई। बाकी 4 बजे रखे हैं 7 बजे, तो देखो 4 बजे के लिए ही ज्यादा सब लोगों की आती है ओपिनियन या 7 बजे होनी चाहिए।
अच्छा सुजीत जी, वो पहला वाला जो क्वेश्चन मेरा था इस पे जी थोड़ा जी। सा और थोड़ा डिटेल में दीजिए। जैसे हाँ अभी वो हम लोग जो बेसमेंट में ज्यादातर फेलियर तो जॉइंट से ही होते हैं, जैसा आप करेक्ट जान करेक्ट नॉर्मली। करेक्ट। नो यू अभी आर आज एब्सोल्युटली की राइट। तारीख वी आर यूजिंग एट प्रेजेंट दैट 901 मास्टर सील विच इज methyl methacrylate based gel. So that is better or polyurethane injection is better? What you feel is better? In fact, which is better technology, and in particular these applications, which one is better? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो जी अगर इपॉक्सी की बात करते हैं, पॉलीयूरेथेन की बात करते हैं, हाइड्रोस्ट्रक्चर की बात करते हैं, मिथाइल मिथाक्रेट की बात करते हैं, सारे सिस्टम अच्छा है, ठीक है। मेन चीज आता है कि हमको कौन सा चीज को कहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको केस वाइज बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है और वो स्ट्रक्चर डैम्प कंडीशन, सॉरी ड्राई कंडीशन पे है, तो आप बिंदास इपॉक्सी पे चाहिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा स्ट्रक्चर में डैम्पनेस है और मुझे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग भी चाहिए, वाटरप्रूफिंग भी चाहिए, तो आपको ड्यूरोमोर बेस्ड पीयू में जाना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरे लिए खाली वाटरप्रूफिंग इज इम्पोर्टेंट, तो यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ लो विस्कोसिटी पीयू इंजेक्शन, ओके। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा स्ट्रक्चर में वाटर प्रेशर काफी हाई है और मैं कोई भी इंजेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा इंजेक्शन कैसे परफेक्टली परफॉर्म करेगा, इन दैट कंडीशन आप पहले फोम इंजेक्शन कीजिए, उसके पास बैकअप आप प्यूरेजिन इंजेक्शन कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपका एनवायरमेंट अल्काली एनवायरमेंट है, अल्काली एनवायरमेंट कहने का मतलब है अगर आपका पीएच वैल्यू इज मोर देन 13 है, या फिर आपका वहां पे जहाँ पे आप सोचिए हाईली मैं क्या बोलूँ, हाईली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड आपका सॉल्यूशन वहाँ पे यूज हुआ है, जैसे कि बेंटोनाइट जैसा या फिर एल्यूमिनियम सिलिकेट जैसा प्रोडक्ट यूज है, जो कि जिसका पीएच वैल्यू मोर देन, या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे है जिस एरिया को आप ग्राउंड कर रहे हैं जिसका पीएच वैल्यू इज मोर देन 13 एंड 14 के आसपास है, तो वहाँ पे नॉर्मली आप मिथाइल मिथाक्रिलेट बेस यूज करेंगे, क्योंकि मिथाइल मिथाक्रिलेट बेस इंजेक्शन विल परफॉर्म गुड इन काइंड ऑफ अल्काली एनवायरनमेंट, ठीक है। बाकी मिथाइल मिथाक्रिलेट्स आपको इलास्टोमर सीलिंग ही देगा, तो जहाँ पे आप लो विस्कस पीयू यूज करेंगे वहाँ पे आप मिथाइल मिथाक्रिलेट भी यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा नॉर्मली जब हम कंस्ट्रक्शन में जो हम हॉस पाइप्स देते हैं, प्री इंजेक्शन पाइप्स आप इंजेक्ट करते हैं, हम रखते हैं फ्यूचर में अगर कोई वाटर लीकेजेस आता है तो हम वहाँ पे इंजेक्ट करके वो होस पाइप के थ्रू वी कैन स्टेबलाइज द जॉइंट्स। तो वहाँ पे पहले रिकमेंड किया जाता था कि आप मिथाक्रिलेट भी यूज करेंगे। तो मिथाक्रिलेट क्यों यूज करते थे, क्योंकि वही एक प्रोडक्ट वो टाइम पे डेवलप हुआ था जो कि वाटर बेस्ड था, क्योंकि आप उसको वाटर से क्लीन कर सकते थे। नॉर्मली वो टाइम पे प्यू को आप वाटर में क्लीन नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए मिथाइल मिथाइलेट इज द ओनली सॉल्यूशन वहाँ पे यूज होता था जो कि आप वाटर में क्लीन कर सकते थे। तो वो सब चीज के लिए आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि वाटर बेस्ड इंजेक्शन बहुत ही कम मिलता है, ठीक है ना। और बाकी आता है हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन। हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन में क्या होता है कि जैसे कि कॉटन ग्राउटिंग की बात आती है, तो कॉटन ग्राउटिंग में मिथाइल मिथाक्रिलेट विल नॉट परफॉर्म, पीयू भी परफॉर्म नहीं करेगा, इवन इफ इपॉक्सी भी परफॉर्म नहीं करेगा, तो वहाँ पे हाइड्रोस्ट्रक्चर इज द ओनली सॉल्यूशन। और जहाँ पे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है और जहाँ पे फ्लेक्सिबल सीलिंग आपको चाहिए, जैसे कि कोई एक्सपेंशन जॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट रहता है वहाँ पे बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन हो या फिर अनइवन एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन के बीच में हो, तो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट काम करेगा, दैट इज द हाइड्रोस्ट्रक्चर रेजिन, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो इसीलिए सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपका खाली पोजिशनिंग आपको चेंज करना है, दैट्स ऑल। जी जी। इसका डिटेल मुझे भेज, अगर मिल जाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि क्या है मिल जाएगा हमारे सर। सब इंडस्ट्रियल और क्रिटिकल वर्क्स ही रहते हैं तो वो जितना हम लोग, और कस्टमर, हमारा जो कस्टमर ऐसा नहीं है जिसको पैसे की तकलीफ हो, या कोई ऐसा क्लाइंट जी ऐसा नहीं है हमारा जो जी बेस है, जी तो सर। उसको। हाँ
नहीं, एग्रीड सर, एग्रीड सर। देखिए, एज ए एमसी बायोकेमी वी आर बिलोंग्स टू जर्मनी एंड हम बेसिकली जर्मन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा प्रेफर करते हैं, और आपको ये भी पता है अच्छी तरह से कि जर्मन सर दे आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी। जो Yes, sir, we are टेक्नोलॉजी fan हम of German technology. एब्सोल्युटली सर, इट इज ट्रू आल्सो। That's why we एंड are BSF also is German company. That's why yes, we. तो सर मृणाल जो जी, टेक्नोलॉजी हाँ सर. जो टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे, आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको बेटर टू बेटर टेक्नोलॉजी देने के लिए धवन साहब आपके साथ हैं, और हम भी आपके साथ हैं, हम भी पीछे खड़े हैं आपके, तो हम आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट देंगे। Vinayji, I am Amol here, and yes, I am aware of you are a big fan of acrylic injections. आपको बहुत successes हैं, but yes, there are various systems and for various conditions. So accordingly, of course, जहाँ पे fine cracks का requirement है, तो fine sealing है, तो we will prefer acrylics also. But mostly तो leakages में PU का ज़्यादा चलन है. So I'm very. So we will be in touch. Yes, we will provide you with the details. Yeah, Amol is also Amol is a very experienced person. He has got lots of experience for such kind of handling such kind of project. वो भी आपको पूरी तरह से support देने के लिए support देगा. तो we are all with you, sir. No issue. Okay. बस खाली चीज ये है कि काम मतलब हमको अच्छा चीज बताना है क्लाइंट को right solution देना है. This is objective should be like this. LinkedIn पे मैंने आपको कुछ डिटेल्स भेजे थे सर, मृणाल साहब। ठीक है, आपको डिस्कस लेटर भेज दीजिए। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन सर? जी सर। जी बोलिए। आपने बताया है कि मुझे कंस्ट्रक्शन से बोल रहा हूँ सर, ग्रेज के बाद स्लैब के नीचे स्पोर्ट करने के बाद लेवल करने के। सॉरी फिर से बोलिए, मैं आपका फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। फिर से बोलिए। आपने टिप बताई है कि स्लैब के नीचे ग्राउंड करने से आप स्लैब लेवल कर सकते हो। नहीं, आपका आवाज कट रहा है। फिर से बोलिए, आपका आवाज कट रहा है। देयर इज सम इशू इन योर नेटवर्क। हाँ बोलिए। एक चीज आपने बताई है टिप के अंदर में कि स्लैब के बॉटम में ग्राउंड करने के बाद पूरा लिफ्ट होता है फ्लोरिंग का स्लैब। कहाँ पे ग्राउंड करने के बाद? कौन सा वाटर में? बॉटम स्लैब में ग्राउंड करने के बाद स्लैब को थोड़ा लिफ्ट, हाँ थोड़ा लिफ्ट कर सकते हैं। आप स्लैब लिफ्टिंग कर सकते हैं या हाँ जी, हाँ जी। तो ज्यादा लिफ्ट ऊपर हो गया तो उसका कंट्रोल कैसे करना है वो एक। अच्छा, ओके। अभी मैं समझा। आप स्लैब लिफ्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं, राइट? यस सर। ओके। तो आप पूछ रहे हैं कि अगर जब स्लैब लिफ्टिंग करने के टाइम पे अगर ज्यादा लिफ्ट हो जाता है तो क्या करेंगे, राइट? हाँ, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि जब हम ग्राउटिंग करते हैं स्लैब लिफ्टिंग के लिए तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट, ये भी एक बहुत ही मॉनिटर करने लायक चीज है कि अगर, क्योंकि जो फोम के वजह से जो एक्सपैंड करता है वो अगर ज्यादा लिफ्ट हो जाए तो क्या। तो डेफिनेटली ये एक एप्लीकेटर का एक्सपर्टाइज के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली जो ग्राउट वहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर स्लैब लिफ्टिंग के लिए, उसका बहुत ही कंट्रोल्ड एक्सपेंशन रहता है। इट इज नॉट स्वेलिंग लाइक मोर देन 300% और 4000% लाइक दैट। तो ये बहुत ही कंट्रोल्ड एक्सपेंशन करता है। तो आपको उसी बेसिस पे धीरे धीरे आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा और आपको लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। इन ए पर्टिकुलर लेवल you can stop injection so that it will be stable in that particular situation. तो उसका एक सेपरेट टेक्नोलॉजी होता है, उसका कभी मैं आपको बाद में कभी उसका सेपरेट प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा so that you can come to know in detail. उसका पूरा धीरे धीरे करके आपको करना पड़ेगा। इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज नॉट अ फास्ट। यस सर। और एक आपने ग्राउंड वाटर के अंदर में जो पीएच लेवल बताया हुआ है ग्राउंड करने के टाइम, कहाँ कौन सा पीएच के ऊपर कौन सा वापरना चाहिए, मतलब पीएच का डेफिनेशन में कहाँ अटकता है कि इतने पीएच के ऊपर में ये केमिकल वापरो, नहीं है तो ये वापरो? नहीं साहब, ऐसा कुछ कहीं पे कोई स्टडी नहीं है।
मैं ये जो बताया आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी पॉलीयूरेथीन और इपॉक्सी या कोई भी रेजिन प्रेस प्रोडक्ट ना थोड़ा हाईली अल्कली एनवायरनमेंट में थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करता है, ठीक है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका पीएच अगर मान लीजिए किसी का 10 है तो आपका इंजेक्शन ग्राउटिंग फेल नहीं हो, क्योंकि मान लीजिए आप कोई टनल में अगर इंजेक्शन करने जा रहे हैं तो पहले आप थोड़ी ना पीएच का पता करेंगे। यू कैन डू दैट एवरी टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर योर एंड टू गो फॉर द पीएच। तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है ना। तो आप पहले क्या करना चाहिए आपको, पहले, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रायल टेक ओवर करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन टेक ओवर करेंगे, आपको पहले ट्रायल करना होता है ना। तो एक बार जब आप ट्रायल करेंगे, वो ट्रायल ही आपको बता देगा वेदर दिस प्रोडक्ट इज सुइटेबल और नॉट, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि पहले तो आप पीयू ही देंगे, है ना, क्योंकि पीयू वाइडली एक्सेप्टेबल होता है, क्लाइंट को भी इजीली समझ में आता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको पीयू परफॉर्म नहीं कर रहा है, इफ सम XYZ रीजन, तो जब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आप इसको भी एक फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, यस सर, परफेक्ट। परफेक्ट, या थैंक यू। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? यहाँ पे मैं मेरा हुसैन साहब मेरी बात सुन रहे हैं? हुसैन साहब वाला सुन रहा हूँ। हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सब ऑटोमेटिक आ रहा है, क्वेश्चन एंड आंसर। अच्छा, तो ये टाइमिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। ये 7 बजे का टाइम परफेक्ट, क्या 4 बजे में डिस्टर्बेंस फोन आते हैं, ये आता है, दिस इज आई थिंक परफेक्ट टाइम। तो 7 बजे ठीक है हमारा? हाँ ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट मीटिंग जो हम जल्दी करने वाले हैं, कल परसों दोबारा एंड कंटिन्यू करने वाले हैं चेन। अच्छा, तो मतलब 7 बजे आपका सजेशन है कि इज राइट टाइम? राइट, या इसमें और कुछ ओपिनियन की जरूरत है? ये पूछ लीजिए और पब्लिक को। अच्छा, तो बस मुझे लगता है कि हमें कंक्लूड करना चाहिए, और आई थिंक वी हैव टेकन 1 hour and 30 minutes almost for the explanation and everything, and we should thanks everybody to join. क्या सुजीत? कल भी है क्या सर? यस एब्सोल्युटली थैंक यू धवन जी, आपने ये सारे चीज को इनिशिएट किया। इट इज रियली आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने हमको चांस दिया आज हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड थैंक्स टू यू, थैंक्स अ लॉट, एंड डेफिनेटली फॉर एनीथिंग धवन जी, फॉर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, इवन इफ जितने भी यहाँ पे पर्सन्स हैं सारे को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, तो आप, मेरा नंबर मैंने आपको दिखा भी दिया था, आप यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, धवन जी से भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, वी ऑल देयर टू हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पर्सनली थैंक्स करना चाहूँगा सुलेखा जी, सन्नी, सुजय दोनों हैं यहाँ पे, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। सनी, सो नाइस ऑफ यू, आपने हमें कंपनी किया, और वी होप कि आपसे भी हम गाइडलाइन लेते रहेंगे। आपकी तो बहुत एक्सपर्टाइज है पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट में और इस ब्रांड में पर्टिकुलरली, हैं? करेक्ट। Yeah, thank you very much, sir. Thank you very much. थैंक यू। Bye, sir. Thank you. Thank you very much. So nice of you. सलीम साहब थैंक यू, आपको देख लिया मैंने। Thank you. I'm happy to see you prospering. अरे सर, आपको इतने दिन से कैसे मैं भूल सकता हूँ, आपको तो मैं भूला ही नहीं हूँ बिल्कुल। अब मिलके इतना डैम का काम किया है और आपको कैसे भूल जाऊंगा? Thank you. सलीम साहब, समीर जावड़े जी सर, धवन जी बोलिए। बस अब धवन साहब, सलीम साहब मेरा पुराने गुरु हैं प्यू फॉर्म के। ओह ग्रेट। और हमारे तो बहुत ही रेवर्ड गुरु है वो। Thank you everybody. Thank you. God bless you all. Thank you sir. Thank you. Very nice. Okay sir. So thanks everybody. So हेलो धवन जी। जी सर, जी। सलीम भाई को अपने महाराष्ट्र यूनिट में लेना है अंदर। श्योर, पक्का। सलीम भाई, you have to be active in this Maharashtra unit. महाराष्ट्र में ही हो, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।
सलीम साहब को हम लोग दिल्ली में लेने वाले हैं, हमें यहाँ इनकी बहुत जरूरत है। बॉम्बे वालों ने उनको बहुत एंजॉय कर लिया, तो हमें उनकी यहाँ जरूरत है। So we have to put him here in Delhi only. ऑल इंडिया रखेंगे, ऑल इंडिया रखेंगे उनको। Okay, so thanks everybody. अच्छा धवन साहब आज चौधरी साहब नहीं थे, चौधरी साहब है क्या? हमारे बहुत सारे लोग अभी बाई चांस मिस हो गए, जो बहुत कमिटेड थे, आने वाले थे। बाई चांस कोई ट्रैफिक में कोई लोग अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम। बट इवन दो वी वर मोर देन 45 पीपल्स ऑनलाइन, Yes, so I think it's 7 बजे के quite a टाइम good का number. ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, 7 बजे के टाइम का एक ये भी प्रॉब्लम है, बहुत लोग ट्रैफिक में फंसे रह जाएंगे। हाँ सर, कई तो लोग सर 8 बजे कर लेते हैं, तो सर 8 बजे कर लेते हैं, 7 बजे का प्रॉब्लम है तो 8 बजे फिर बहुत से लोगों का डिनर टाइम हो जाता है ऑलमोस्ट। 8 बजे तो 9 बजे तक मीटिंग चलेगी। वो तो है, वो तो है। धवल जी, आपको जो टाइम सूट होता है सब एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ सर। लेकिन हमें वही रखना है जो आपको अच्छा लगे सर। वी आर हियर टू सर्व यू। सब हो जाता है। देखिए हाँ, ठीक है, तो कभी ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा तो ठीक है सर, कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर एवरीबॉडी टू ज्वाइन। थैंक यू एंड सी यू अगेन। गुड नाइट, थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू।